आदाब। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा दिल। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। बीदर में 2 और 3 दिसंबर को बीदर रोटरी क्लब की सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। दिसंबर की 1 और 2 तारीख को हुलसूर में दूसरा कन्नड़ साहित्य सम्मेलन। सीएम सिद्धरामैया डीकेएस ने चुनावी राज्य टीएस में सरकारी विज्ञापन गारंटी योजनाओं का बचाव किया। हम सीएए लागू करके रहेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। कोलकाता की रैली में गरजे अमित शाह। नेताओं की परख उनके साधारण कपड़ों से नहीं, उनकी संतानों को देखकर होती है, राहुल गांधी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पीएमजीकेएवाई योजना के तहत अब इतने साल तक मिलेगा मुफ्त राशन। अब समाचार विस्तार से। बीदर रोटरी क्लब और बीदर फोर्ट द्वारा बीदर रोटरी क्लब के 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली के इस मौके पर 2 और 3 दिसंबर को विभिन्न प्रतियोगिताएं शहर के रंग मंदिर में आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 3 दिसंबर को सुबह साइकिल मैराथन रैली भी आयोजित किया जा रहा है। आज बीदर शहर के पत्रिका भवन में पत्रकारों से बात करते हुए ये जानकारी दी गई। इस मौके पर बसवराज धन्नूर, डॉक्टर रघु कृष्णा मूर्ति, हाव शेट्टी, आदेश वाली और रवि मुलगे सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು 3ರಂದು ನಗರದ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಸಪ್ತ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ರೋಟರಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರವನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೆಮಿನಾರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಬೀದರ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ರೇ, ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವಿ ಮುಲ್ಗೆ ಅವರೇ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೀದರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕಾಡಾದಿಯವರೇ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೀದರ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿನೇ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರುಚಿಕಾ ಶಾ ಅವರೇ, ಆಮೇಲೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಗರಾಜ್ ಕರ್ಪೂರ್ ಅವರೇ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೀದರ್ ಫೋರ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಗುಂಡಪ್ಪ ಗೋದೆ ಅವರೇ. ಈಗ ತಾನೇ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ 9ನೇ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ದಾರ್ ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರನಾದ ಪುನೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪೂಜಾ ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಆದೇಶ್ ವಾಲಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಧನ್ನೂರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರೆ. कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा दिसंबर की 1 और 2 तारीख को हुलसूर में दूसरा कन्नड़ साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा बुलाई गई पत्रिका गोष्ठी में बताया गया है कि ये सम्मेलन क्षेत्रीय सम्मेलन है। पहला सम्मेलन गुलबर्गा में आयोजित किया गया था और 1 और 2 दिसंबर को बीदर जिले के हुलसूर में किया जा रहा है। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶಿವಾನಂದ ಮೇತ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಾಯಿಗಾಂವ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿಂತ ಶರಣು ಸಲ್ಗಾರ್ ಅವರು ಆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅನೇಕ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಡಿಜೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಿರ್ತವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಲೇಜಿಮ್ ಕೋಲಾಟ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಲ್ಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದೀಶ್ ವಾಲಿಯವರು ಸಾಗಬೇಕು. ಆದೀಶ್ ವಾಲಿಯವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ UKಯ ಅಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿರವರೇ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಪೂಜ್ಯರಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು, ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿರವರು ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹುಲ್ಸೂರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ತುಲಾಭಾರನೂ ಮಾಡ್ಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬನೂ ಮಾಡ್ಕೋಂಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ನಾನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಒಂದು ವಚನಗಳಿಟ್ಟು ವಚನ ತೇರು ಎಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಚನ ತೇರು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತೇರು ಎಳಿತಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರು. ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಯಾವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತಾಗ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಒಪ್ತೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಅದು ಗಡಿನಾಡ ಭಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ಉಳಿಬೇಕು, ಬೆಳಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ 2ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಅದು ಹುಲ್ಸೂರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ 1ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಸೂರಲ್ಲೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದೆ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾವು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜಾ ಹಾರಕುಳಚೇರಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ನಮ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 1ನೇ ತಾರೀಕು 2ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನವರೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಕೂಡ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋದೇನೆಂದರೆ 1 ಮತ್ತು 2 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಂತ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿ. कांग्रेस सरकार को भारत के चुनाव आयोग के नोटिस के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने चुनावी राज्य तेलंगाना में अपनी गारंटी योजनाओं का विज्ञापन करने के राज्य सरकार के फैसले का बचाव किया। विज्ञापनों में गरीबों तक पहुंच रही गारंटी योजनाओं पर सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। सीएम और डिप्टी सीएम ने कहा वे वोट मांगने के लिए नहीं हैं, जहां शिवकुमार ने कहा कि सरकार चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देगी। वहीं सिद्धरामैया ने कहा कि चुनाव आयोग की आपत्ति के बाद विज्ञापन रोक दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद विज्ञापन रोक दिए गए। नोटिस तब जारी किया गया जब बीजेपी ने विज्ञापनों के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। शिवकुमार ने कहा कि विज्ञापनों में कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया गया है कि मतदाता को कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी से उम्मीदवार चुनना चाहिए। विज्ञापन में हमारे कार्यों का विवरण है, इसे उल्लंघन कैसे माना जाता है। राज्य सरकार द्वारा मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में बीडीए और केपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष टी श्याम भट्ट की नियुक्ति पर बहुत नाराजगी, गुस्सा और निराशा है।
एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, याद रखें उन्हें केपीसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया था और देखें कि क्या हुआ। केपीसीसी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के कारण लगभग 361 प्रतिभाशाली निर्दोष अभ्यर्थियों को कई वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा। हर कोई जानता है कि कौन जिम्मेदार था। मानवाधिकार आयोग एक ऐसी जगह है जहां बहुत कुछ किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री चंद्रू ने भट्ट की नियुक्ति की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग भ्रष्ट भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं और उन्होंने शांतिपूर्ण जीवन के लिए कांग्रेस को चुना। लेकिन सिद्धरामैया सरकार ने भ्रष्टाचार के कई आरोपों के आरोपी एक विवादास्पद व्यक्ति भट्ट को नियुक्त करके उनके भरोसे को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब भट्ट बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के आयुक्त थे तो उन्होंने मूल आवंटियों की सहमति के बिना एक हाउसिंग सोसाइटी के लेआउट प्लान में संशोधन करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। उन्हें बीडीए में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के लिए भी जाना जाता है। ये स्वागत योग्य नहीं है कि उन्हें अब ये पद दिया गया है। बीजापुर में मंत्री कृष्णा बैरे गौड़ा का भव्य स्वागत किया गया। आज जब मंत्री बीजापुर में प्रवेश करने के साथ कांग्रेस नेता अब्दुल हामिद मुशर्रफ स्वागत किया। इस अवसर पर बीजापुर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जमीर बख्शी और महिला कांग्रेस की विद्यारानी तेंगल सहित अन्य नेता उपस्थित थे। बीजापुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता की रैली में साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार नागरिकता संशोधन कानून लागू करके रहेगी। इसे कोई नहीं रोक सकता है। ये देश का कानून है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 212 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र किया और कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में जनता अपने वोटों से इन हत्याओं का बदला लेगी। अमित शाह ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अमित शाह ने कोलकाता से लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करते हुए ये बात कही। अमित शाह ने बंगाल की जनता से ये अपील की कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इतनी सीटें दीजिए कि मोदी ये कहें कि मैं बंगाल की वजह से प्रधानमंत्री बना हूं। इस मौके पर उन्होंने तुष्टीकरण, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और लोगों से उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने तथा अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनने का आग्रह किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि कुछ नेताओं का मूल्यांकन उनके साधारण पहनावे या कम कीमत वाली घड़ियों के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे आम जनता से अपनी असली संपत्ति छिपाने में बहुत चतुर होते हैं। वो यहाँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के दिवंगत नेता P सीथी हाजी पर लिखी गई एक किताब के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं के असली स्वभाव को उनके बच्चों को देखकर पहचाना जा सकता है। कांग्रेस नेताओं ने कहा, मैं कई नेताओं से मिलता हूं और जैसा कि आप जानते हैं वे बहुत चतुर लोग हैं। आज के नेता आपको केवल वही दिखाएंगे जो वे आपको दिखाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा, कभी कभी जब वे मुझसे मिलने आते हैं तो साधारण कपड़े, कम कीमत वाली घड़ियां और फटे जूते पहनकर आते हैं। जब आप उनके घर जाते हैं तो वहां उनके पास बड़ी BMW होती है। ये लोग बहुत चतुर होते हैं। वे जानते हैं कि आप क्या देख रहे हैं। उनके मुताबिक नेता कपड़ों और पहनावे की अन्य चीजों के जरिए अपनी असलियत को छिपा सकते हैं, लेकिन जब बात उनके बच्चों की आती है तो सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इसी कारण उन्हें इन व्यक्तियों का त्वरित और सटीक मूल्यांकन करने के लिए एक नए तरीके का सहारा लेना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 के आने में अभी कई महीनों का समय बचा हुआ है। हालांकि इससे पहले ही मोदी सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए PMGKY योजना के तहत मुफ्त राशन स्कीम को फिर से आगे बढ़ा दिया है। अब लोगों को आने वाले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन योजना का लाभ मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि PMGKY का पूरा नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। गरीबों की मदद के लिए ये योजना हर बार आगे बढ़ाई गई। मोदी सरकार द्वारा मुफ्त राशन स्कीम को आगे बढ़ाए जाने के इस फैसले से देश भर के कुल 81 करोड़ लोग लाभान्वित होने जा रहे हैं। इन सभी लोगों को 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त में मिलेगा। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 30 जून 2020 को की गई थी। योजना के तहत गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं बिना किसी शुल्क के मिलता है। केंद्र सरकार समय समय पर इस योजना को आगे बढ़ाती रही है। इससे पहले इस योजना को साल 2023
तक के लिए बढ़ाया गया था। हालांकि छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के समय पीएम मोदी ने इस योजना को आगे बढ़ाने की बात कही थी। अब इसका आधिकारिक ऐलान हो गया है। पीएमजीकेवाई योजना के तहत फ्री राशन देने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। भारत सरकार इसमें 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में करीब 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। पीएम मोदी के करीबी नेताओं में शुमार सुनील भाई ओझा का बुधवार को निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने के बाद ओझा को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। सुनील ओझा काशी क्षेत्र के पूर्व संयोजक रहे थे। वहीं भाजपा ने उन्हें वर्तमान में भाजपा के बिहार प्रभारी की जिम्मेदारी दे रखी थी। सुनील ओझा उन बेहद कम नेताओं की लिस्ट में थे जिन्हें पीएम मोदी से मिलने का सीधा एक्सेस था। वो काशी क्षेत्र के पूर्व संयोजक भी रह चुके थे। साल 2014 में जब पीएम मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, तब सुनील ओझा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए गुजरात से काशी पहुंचे थे। इसके बाद वो काशी में ही रह गए। वाराणसी मिर्जापुर के बॉर्डर के गढ़ोली धाम को लेकर भी ओझा चर्चा में आए थे। सुनील ओझा गुजरात की 10वीं और 11वीं विधानसभा में भावनगर दक्षिण सीट से 2 बार के विधायक थे। एक वक्त भावनगर कांग्रेस का बड़ा गढ़ था। हालांकि इस गढ़ को फतह करने का श्रेय सुनील ओझा को ही जाता है, जो कि आज तक कायम है। वो करीब 20 सालों से पीएम मोदी के साथ थे। इस कारण पीएम को उन पर काफी भरोसा था। पूर्व मेयर और शिवसेना यूबीटी नेता दत्ता दलवी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी भांडुप पुलिस ने दी है। मिली जानकारी के अनुसार शिवसेना नेता संजय राउत अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। हालांकि ताजा मिली जानकारी के अनुसार मुंबई के मुलुंड कोर्ट ने दत्ता दलवी को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। दत्ता दलवी के खिलाफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल की वजह से मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ मुंबई के भांडुप पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। भांडुप पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धारा और 505 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। भांडुप पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भांडुप स्टेशन के पास उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से सभा का आयोजन किया गया था और उस सभा में दत्ता दलवी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे गुट के विभाग प्रमुख के तरफ से दत्ता दलवी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। अमेरिका सेना का ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर दक्षिणी जापान में समुद्र में घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जापान के तट रक्षक राहत एवं बचाव कार्यों के लिए घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। तट रक्षक के प्रवक्ता काजुओ अगुआ ने कहा कि हेलीकॉप्टर और उसमें सवार लोगों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि तट रक्षक को याकुशिमा के पास दुर्घटना स्थल के निकट मछली पकड़ने वाली एक नौका से एक आपातकालीन फोन आया। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ऑस्प्रे किस अड्डे से था। माना जा रहा है कि ये इवाकुनी से ओकिनावा की ओर जा रहा था। इससे पहले पिछले दिनों अमेरिका का एक सैन्य खुफिया विमान समुद्र में गिरकर घटनाग्रस्त हो गया था।
इस विमान को रनवे पर लैंड करना था, लेकिन वो रनवे से आगे निकल गया और समुद्र में जा गिरा। इस विमान में कई यात्री सवार थे। जानिए इन यात्रियों का फिर क्या हुआ। ये दुर्घटना सोमवार दोपहर होनोलुलु से 10 मील दूर यूएस मरीन बेस पर हुई। ये अमेरिकी नौसेना का P-8A विमान था जो लैंडिंग से चूक गया था और समुद्र में जा गिरा। विमान में समुद्र में गिरने का जब हादसा हुआ तो उस वक्त काफी तेज बारिश हो रही थी। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे विशाल विमान केनोहे की खाड़ी में तट के पास तैर रहा है। ये हादसा होते ही बचाव दल को मदद के लिए दौड़ना पड़ा। खास बात यह रही कि राहत और बचाव दल के सदस्यों ने विमान में सवार सभी 9 लोगों को नाव से तट की ओर लाकर बचा लिया। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम 4 दिन के बाद 2 दिन और बढ़ गया है। भारत ने जंग के बीच युद्ध विराम के फैसले का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के अवसर पर फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ दीर्घकालिक संबंधों की पुष्टि की। बता दें कि युद्ध में अब तक करीब 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पिछले 5 दिनों से दोनों पक्षों ने सीज फायर घोषित कर दिया है। इस दौरान फिलिस्तीन ने 12 और बंधकों को रिहा किया है। इसके बदले इजराइल ने 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस है। इस अवसर पर भारत फिलिस्तीनी लोगों के साथ दीर्घकालीन संबंधों की पुष्टि करता है। हम फिलिस्तीनी लोगों के शांति और समृद्धि का समर्थन करते हैं। मध्य पूर्व में स्थिति तनावग्रस्त है। इजराइल हमास युद्ध के कारण बड़ी यात्रा में नागरिक जीवन की हानि हो रही है। महिलाओं, बच्चों सहित अन्य लोग संकट में हैं। ये अस्वीकार्य है कि हम नागरिकों की मौत की कड़ी निंदा करते हैं। हम उन तमाम फैसलों का स्वागत करते हैं जिससे क्षेत्र में तनाव कम हो सके। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर में 2 और 3 दिसंबर को बीदर रोटरी क्लब की सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। दिसंबर की 1 और 2 तारीख को हुलसूर में दूसरा कन्नड़ साहित्य सम्मेलन। सीएम सिद्धरामैया DKS ने चुनावी राज्य TS में सरकारी विज्ञापन गारंटी योजनाओं का बचाव किया। हम CAA लागू करके रहेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। कोलकाता की रैली में गरजे अमित शाह। नेताओं की परख उनके साधारण कपड़ों से नहीं, उनकी संतानों को देखकर होती है। राहुल गांधी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। PMGKAY योजना के तहत अब इतने साल तक मिलेगा मुफ्त राशन। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हमारा KP न्यूज चैनल। धन्यवाद।